हेलो एवरीवन, आई एम रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली विद इन 1 month. So let me assure one more thing is here, like this strategy whatever I am going to share with you, it can work for the people according to their background. Okay, if you are complete beginner then it quite not be possible, but yes, if you follow the strategy then definitely it would be just lot close to this language. I cannot give you this guarantee that you would be able to speak fluent English because इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है वीडियो बनाने का कि मेरे को व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना है, बहुत सारा व्यूअर्स एंड क्लिक रेशियो चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी बताऊंगी बहुत ही ऑनेस्ट टिप्स एंड टेक्निक्स देने वाली हूँ जो डेफिनेटली वर्क करेगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश आती है बट उनका प्रॉब्लम फ्लुएंसी में है, मीन्स लाइक दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली. So this would be more helpful for those type of person who already have good command over this language, but they need to polish their language and they need to just enhance and grab the fluency. So without doing any kind of delay, I would like to start with. So the first important thing that you have to do from today is plan your day, make a schedule. How you are going to learn this language and how many hours you have to give to this language. It's important. So सबसे पहले अपना day plan करना है. For example, if anyone is thinking here that 1 hour would be sufficient and 2 hours would be sufficient to learn this language within 1 month, then no, it's not possible. मतलब 1 महीने में 1 घंटा या 2 घंटा दे करके ये लैंग्वेज सीखा ही नहीं जा सकता है. तो इसके लिए कम से कम if I would be honest then I would say at least 8 hours. 8 hours you would have to give. Means firstly you should not take this challenge as a task. You just have to think like that it's a kind of challenge that I have to complete at any cost. When you are going to think that I have to gain 100% fluency, then definitely within 1 month at least you would be able to talk with 60% fluency. मतलब ऐसा होता है जब आप 100% किसी चीज़ को टारगेट कर रहे होते हो और आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो अपने हार्डवर्क के साथ, आप कंसिस्टेंट हो, आप हर वो चीज़ फॉलो कर रहे हो जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, तब आप 100% तक आप अचीव कर सकते हो विद इन 1 month. Even if you would be not be very consistent, means like you are going to little bit up and down with the tricks and the strategy which I am going to share, even after that you would be able to talk fluently. But there is one requirement is your dedication, your consistent work, and you have to just follow the everything. Every day at least 3 hours for practice. 3 hours मतलब 3 घंटे किसी ना किसी से बात करनी ही है. अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है then you can go and watch my previous video where I have shared how you can find out your partner to speak and to practice your English. So 3 घंटे स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है एंड 2 घंटे रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. आई एम नॉट इन्वॉल्विंग राइटिंग हियर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट राइट नाउ वी हैव टू जस्ट गेन द फ्लुएंसी. लिसनिंग प्रैक्टिस यू कैन डू इन 2 ways. आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो एटलीस्ट फॉर 2 hours, और यू कैन ऑल्सो गो विद द ऑडियो फॉर्म्स. So the first strategy you have to follow at any cost is just become obsessive. Yes, जैसा कि अगर कोई क्रश हो तो हम लोग एकदम उसके पीछे लगे रहते हैं. मतलब any how I have to impress that person, any how I just have to make that person to say yes whenever anyone is going to propose their crush. As you follow, as you chase your crush, yes, I am using this word,
In the same way, you have to become crazy for learning this language. And what you have to do is, all the time, the 24 hours should be dedicated to your language. Whatever you are going to do, you just have to do in English. Do you remember one ad, Amitabh Bachchan ad? I can read in English, I can run in English, I can eat in English, I can sleep in English, I can do this and then everything I can do in English. So the intention of saying all this word is that just सुबह से जो उठ करके हम लोग जो भी हैबिट्स फॉलो करते हैं वो सब कुछ को इंग्लिश में करना है. तो सबसे पहले उठ करके हम लोग अपना डे प्लान करते हैं, राइट? Just after waking up, whatever you have to do list, think in English. It is not too hard, it is not very easy because you are not habitual of that, but you have to develop this habit if you want to speak fluently, because it is game of your mind. How your mind is going to be support you, it is important, but your mind will only support you when you are going to dictate it, when you are going to order your mind that no, at any cost you have to think in English. It can be happen, and this is the first step towards this language. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, उठने के बाद अपने नेटिव लैंग्वेज में जो भी कुछ मतलब कुछ भी करना है, प्लान है, कुछ भी करना है, वो सबको हम लोग हिंदी में सोचते हैं या अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं. बट फ्रॉम नाउ ऑन यू डोंट हैव टू थिंक इन योर नेटिव लैंग्वेज, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज just inevitable part, if you are not doing it, if you don't have this, then no matter how much effort you are going to give, it's not going to work for you. Just find out the reason why do you want to learn this language, find out the benefit, what the benefit you are going to get, because there is important role of psychology. बहुत बार हम लोग कुछ चीज़ इसलिए भी सीखना चाहते हैं क्योंकि उस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलने वाला होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है, उसको बोलोगे कि बाबू होमवर्क कर लो, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू गिव यू 2 चॉकलेट और 3 चॉकलेट, ओके, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डू दैट. So in the same way, if we find out the benefit, what the benefit you are going to get. If anyone preparing for any kind of government exam, or if anyone is preparing for any kind of job, definitely they are going to prepare for the interview as well. So interview English में अगर होगा और अगर आप पास हो गए, then after you are going to get the job. अगर आप हर चीज़ में ऑलरेडी ठीक हो, आपको ऐसा कॉन्फिडेंट है मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी ठीक है, ओनली थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है स्पीकिंग इंग्लिश नहीं आती है, बस ये अगर ठीक हो जाए ना, तब तो पक्का ही जॉब आ जाएगी मेरी. तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस चीज़ को एक मोटिव बनाओ, और एवरी मॉर्निंग यू हैव टू थिंक अबाउट योर बेनिफिट. अगर आप सीख जाते हो एक बार ये लैंग्वेज, तो आपको कितना सारा बेनिफिट मिलने वाला है. जस्ट लाइक हम लोग हमेशा इस बात से मोटिवेटेड होते हैं कि अगर एक बार जॉब लग जाएगी ना, तब तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो हम लोग काफ़ी एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, काफ़ी एनर्जी के साथ स्टडी करते हैं, हर रोज़ प्रोडक्टिव होने का कोशिश करते हैं. इन द सेम वे, जस्ट एक गोल बनाना है, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू क्रिएट एंड यू हैव टू फाइंड आउट इज द बेनिफिट, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम लर्निंग दिस लैंग्वेज. क्योंकि अगर आपको पता हो कि ये चीज़ करने के बाद अगर मुझे अभी ये हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बट इसके बाद मुझे तो जो फ्रूट मिलने वाला है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, इट्स गोइंग टू चेंज माई लाइफ. सो डेफिनेटली आप फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ आप वर्क करने वाले हो, आप डेफिनेटली ये लैंग्वेज सीखने वाले हो. नाउ द थर्ड टिप इज हियर दैट रीडिंग आउट लाउड, बिकॉज बिना रीड किए तो कोई काम बनने वाला ही नहीं है. इट इज़ ट्रू.
अगर आप नहीं रीड करोगे, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ आप बोलने का कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत सारी यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं बिल्कुल सिमिलर, ह्यूमन एंड ह्यूमेन, दिस टू वर्ड इट जस्ट साउंड similar but their meaning is totally different. But what we cannot do is we cannot mug up, right? इसी वजह से जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत सारे वर्ड्स का यूसेस पता चलता है कि अच्छा ये वर्ड को यहाँ पे ऐसे यूज़ किया जाता है, इस वर्ड को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। कभी कभी किसी वर्ड का यूज़ पॉजिटिव में होता है, कभी कभी किसी वर्ड का यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है। तो वो सब कुछ पता चलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू रीड बुक, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड एनी न्यूज़पेपर। आई एम नॉट सेइंग टू रीड line by line newspaper, no, you can just read the article because it gives you the broad idea and it is not that much difficult, so you can do this. And the thing which you need to notice while reading is just always have to keep one separate diary where you are going to note down every new words. जो भी कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे उसको लिखना है, उसको गूगल पे सर्च करना है विथ एग्जाम्पल, एंड दैट द एग्जैक्ट डे यू हैव टू डू इट. Now the fourth important thing is that if you are little bit comfortable by paying anyone to learn this language, then you should not skip it. Whether you believe or not believe, but whenever we pay some amount to get something, the quality of that product is always going to be far better than the free materials. Simply means, in the simple way I want to say, आप किसी भी प्रोफेशनल ट्यूटर का हेल्प ले सकते हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो. मीन्स लाइक अगर मेरे पास है कुछ पैसे और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, देन वाई शुड आई नॉट गो विद दैट. जब हम लोग किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप से ना डर होता है, एक अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे एनी हाउ तो ये लैंग्वेज सीखना है, हर रोज़ तो क्लास करना ही करना है. तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि किसी भी तरह का अगर रिटेन इंस्टीट्यूट में आप इन्वॉल्व हो जाओ, रिटेन थिंग्स में इन्वॉल्व हो जाओ. नो, आई एम नॉट सेइंग इट, बट येस देयर आर मेनी एप्लीकेशंस एंड मेनी प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ज्वाइन एंड वेयर यू कैन डू योर प्रैक्टिस ऑन द रेगुलर बेसिस. आपको एक ट्यूटर होगा जो आपसे बात करने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, या वो आपको असिस्ट एंड हेल्प करने वाले हैं. सो ये चीज़ करने में बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए. इफ़ यू कैन अफोर्ड देन डेफिनेटली यू टू शुड टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स. नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट प्रैक्टिसिंग. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट. 3 घंटे कम से कम तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है. ठीक है, मेरे को नहीं आती है इंग्लिश, हर किसी को नहीं आती है शुरुआती में, नर्वसनेस हो रहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सबको होता है. मीन्स लाइक व्हाटएवर काइंड ऑफ फियर, नर्वसनेस, हेजिटेशन and you are feeling like down, you don't want to practice because of this kind of problem. No, just your focus should be just I have to do practice at any cost, and you have to believe like that if I will be able to do practice today for the 3 hours, next day I'm not going to feel the same fear. The intense of the fear and the intense of the agitation and nervousness little bit be down in the comparison to today. अपने आप से ये सब चीज़ें कम हो जाएगी, पक्का से कम हो जाएगा, मैं ऐसे गारंटी दे सकती हूँ. अगर आप एक दिन में 3 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग प्रैक्टिस, अगर आप एक दिन में 3 घंटे कर रहे हो, तो पक्का से ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको, या आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ होने वाला है, ये कम हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर वॉचिंग, ये दोनों काम करने के बाद प्रैक्टिस करना है. करना ये है कि जैसे जो रीड करने के टाइम जो भी आपने वर्ड्स वगैरह जो भी नोट डाउन किया है, वॉचिंग के टाइम पे आपने जो भी वर्ड्स वगैरह नोट डाउन किया है,
उन सबको उस टाइम पे यूटिलाइज करने का कोशिश करना है, उस टाइम पे यूज़ करने का कोशिश करना है। और जो भी वर्ड वगैरह आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, उसको कोशिश करो कि एग्जाम्पल के साथ लिखो। और एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो इजी हो याद करने में और जो इजी हो यूज़ करने में। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो कॉपी खोल करके बैठो, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हो, और उसको देख करके इंटेंशनली ऐसा जानबूझ के वैसा वो वर्ड यूज़ करो। ठीक है, कभी कभी गलत वे में भी वो यूज़ होगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अपने आप से जो है माइंड उसको ठीक कर देगा। नेक्स्ट टाइम से आप समझ जाओगे कि अच्छा ये तो मैंने गलती की थी उस टाइम पे, बट नाउ नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस मिस्टेक। So I think I have conveyed all the message whatever I have to talk in this video. Just do your practice. I'll see you in the next video. But one more thing, if you like this video, do not forget to like and subscribe. Do share with your friends also. Thank you. I'll see you in the next video.